محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. ترمذی 1572. آغاز سے قبل ایک نظر آج کی اہم سرخیاں. نوجوانوں میں کھیلوں کا جوش اور قابلیت کو ابھارنے کے مقصد سے ہی سی ایم KCR کے جنم دن کے موقع پر ریاستی سطح والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جا رہا. MLC کے کویتا. مرکزی و ریاستی حکومتیں عوام و کسانوں کو دے رہی دھوکہ. مفت برقی، ڈبل بیڈ رومز و دیگر سہولتیں فراہم کرنے میں حکومتیں ناکام. سابقہ ریاستی وزیر سدرشن ریڈی. انتخابی موسم کے جلد آغاز کے امکانات و پیش قیاسیاں. برساتی مینڈک و بن پیندے کے لوٹے عوامی مسائل کو لے کر ہو رہے سرگرم. عوام ہوشیار باش. عازمین حج 2023 کے لیے خوشخبری. حج فارمز کے ادخال کا آغاز. 10 مارچ فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ. عازمین حج دفتر واقع تبارک اسکول سے رجوع کرے. صدر سوسائٹی مولانا اسماعیل عارفی صاحب. اب خبریں تفصیل سے. دیہی علاقوں کے کھلاڑیوں میں چھپی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے بھارت جاگرتی کی جانب سے سی ایم KCR کے جنم دن کے موقع پر KCR کپ کا ریاستی سطح پر والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا. MLC کے کویتا کا بیان. سی ایم KCR کے جنم دن کے موقع پر بھارت جاگرتی کی قیادت میں ریاستی سطح پر KCR کپ 2023 ریاستی والی بال ٹورنامنٹ کے انعقاد کے لیے MLC کے کویتا نے حیدرآباد گھر میں پوسٹرز کی اجرائی عمل میں لائی. یہ ٹورنامنٹ بتاریخ 15 اور 16 فروری حیدرآباد کے لال بہادر اسٹیڈیم میں منعقد کیے جائیں گے. اس ٹورنامنٹ میں مرد خواتین حصہ لیں گے. انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ اس کھیل کے مقابلوں میں ریاست کے ہر ضلع سے کھلاڑیوں کو حصہ لینے کی دعوت دی. اس مقابلے میں حصہ لیتے ہوئے جیتنے والے کو ریاستی سطح پر اول آنے پر ٹرافی و میڈل کے ساتھ 1 لاکھ نقد انعام دیا جائے گا. اسی طرح دوسرے نمبر آنے والوں کو ٹرافی کے ساتھ میڈلز 75,000 روپے نقد اور تیسرے نمبر پر آنے والے کھلاڑیوں کو ٹرافی میڈلز کے ساتھ 50,000 نقد انعام دیا جائے گا. اس کے ساتھ کھلاڑیوں میں خصوصی انعام بھی دیے جائیں گے. اس پروگرام میں MP وی روی چندرا، بھارت جاگرتی جنرل سیکرٹری نوین آچاری، نائب صدر M راجیو ساگر، دیگر قائدین بھی موجود تھے. عازمین حج 2023 کے لیے خوشخبری. نظام آباد حج سوسائٹی کے دفتر واقع تبارک کمپلیکس پر عازمین 2023 کے فارموں کی خانہ پوری کا آغاز ہو چکا. عازمین دفتر حج سوسائٹی سے رجوع ہو کر درخواست داخل کریں. حج سوسائٹی صدر حضرت مولانا اسماعیل عارفی کی پریس کانفرنس. نظام آباد حج سوسائٹی دفتر واقع تبارک کمپلیکس تبارک اسکول حتائی میں حج سوسائٹی کی جانب سے پریس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں حج سوسائٹی صدر حضرت مولانا اسماعیل عارفی کے علاوہ دیگر ذمہ داران نے شرکت کی. حج سوسائٹی صدر مولانا اسماعیل عارفی صاحب نے بتایا کہ عازمین حج 2023 کے لیے بڑی خوشخبری ہے. عازمین کے فارموں کی خانہ پوری و درخواست داخل کرنے کے کاموں کا آغاز ہو چکا اور بتایا کہ عازمین اپنے ساتھ تازہ فوٹو، پاسپورٹ، آدھار کارڈ، بینک پاس بک، کووڈ سرٹیفکیٹ، بلڈ گروپ رپورٹ، چیک دفتر حج سوسائٹی رجوع ہو تاکہ درخواست داخل کر سکے اور فارموں کی خانہ پوری کی جا سکے. انہوں نے بتایا کہ عازمین کی سہولت کے لیے نزاکت جویلرز احمدی بازار، جمیعت العلماء دفتر بودھن روڈ، دلی ٹی ایمپوریم، یاقوت پلازا، خلا روڈ اور سینئر سٹیزن دفتر احمد پورہ کالونی پر حج سوسائٹی نظام آباد کے تحت عارضی دفاتر قائم کیے گئے.
इससे इस्तिफादा हासिल करें। हज सोसाइटी सदर हजरत मौलाना इस्माइल आरिफी ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता 27 सालों से हज सोसाइटी मुफ्त बिला किसी मुआवजा आज़मीन की खिदमत अंजाम देती आ रही। फॉर्मों की खानापुरी से लेकर आज़मीन को हज हाउस पहुंचाना और वापसी तक अपनी खिदमत मुफ्त में अंजाम देती आ रही। इस्तिफादे की अपील की। हज 2023 के फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हुआ। निज़ामाबाद हज सोसाइटी गुज़िश्ता 27 सालों से आज़मीन के लिए फ्री खिदमत अंजाम देती आ रही है। अब हज 2023 के आज़मीन के भी लिए खुशखबरी है। फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हुआ। जो अहबाब इस साल 2023 में आज़मीन यानी हज का जो इरादा रखते हैं वो दफ्तर हज सोसाइटी निज़ामाबाद, इसी तरीके से नज़ाकत ज्वेलर्स अहमदी बाज़ार और जमीयतुल उलमा जमीयत कॉम्प्लेक्स में, इसी तरीके से सीनियर सिटीज़न निज़ामाबाद और दिल्ली टी याकूब कॉम्प्लेक्स में जो है ऑफ़िस कायम किए गए हैं। वहाँ पर पहुँचकर रब्त हासिल कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हज सोसाइटी का मेन दफ्तर जो है तबारक पब्लिक स्कूल में है। आने वाले आज़मीन से गुजारिश है कि अपना मोबाइल नंबर, पासपोर्ट, ताज़ा फ़ोटो, कवर बैंड, हेड पास और ब्लड ग्रुप, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट, इसी तरीके से जो है साथ में जो है पैन कार्ड भी हो, एड्रेस प्रूफ भी हो। और इसके अलावा जो भी मज़ीद मालूमात हासिल करना है दफ्तर तबारक स्कूल पर जो है आकर आप हज सोसाइटी से मालूम हासिल कर सकते हैं। पुलिस एनुअल स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट का इनेकाद, खेलों से कामयाब सेहत की उम्मीदें, खेलों को अपनाए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, सीपी KR नागराजू का मशवरा। जिला पुलिस डिपार्टमेंट की क़ियादत में एनुअल स्पोर्ट मीट 2023 मुनाकिद की गई। पुलिस परेड ग्राउंड में मुनाकिद किए गए इस स्पोर्ट मीट में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर KR नागराजू के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। सबसे पहले इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर ने पुलिस के जरिए सलामी लेते हुए कौमी परचम लहराया और शमा जलाई। इसके बाद एनुअल स्पोर्ट एंड गेम्स मीट 2023 का आगाज किया गया। एन श्रीनिवास ने ओलंपिक मशाल को हाथ में पकड़कर खेल की शमा को लिए परेड ग्राउंड का चक्कर लगाया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बात करते हुए बताया कि रियासत में अमन शांति को कायम रखने में पुलिस का अहम किरदार होता है। यूनिफॉर्म में रहने वाले 24 घंटे खिदमत में ही रहते हैं। दूसरे शोबे में काम करने वालों को कोई ना कोई छुट्टी मिलती है। हर वो त्यौहार, ईद को वो अपने खानदान के हमरा हंसी खुशी गुजारने की सहूलत मुहैया होती है, लेकिन पुलिस महकमे को कोई छुट्टी नहीं होती। कोई ईद त्यौहार की छुट्टी नहीं मिलती। वो हमेशा खिदमत गुजारी में पाए जाते हैं। इन पुलिस को एनुअल स्पोर्ट एंड गेम्स मीट 2023 ही एक खुशी और राहत देती है। खेलों के जरिए एक दूसरे के बीच एक लगाव, अच्छे ताल्लुकात होने लगते हैं। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर KR नागराजू ने बात करते हुए बताया कि कोविड की वजह से कुछ सालों से खेलों का इनेकाद अमल में नहीं लाया गया। अब अच्छे सुकून की हालत होने की वजह से अब स्पोर्ट मीट का इनेकाद किया जा रहा। पुलिस डिपार्टमेंट को कसरत करने की जरूरत होती है, इसलिए खेलों पर भी ख्याल करने की जरूरत है। इन खेल के मुकाबलों को निजामाबाद, बोधन, आर्मूर सब डिवीजन, होमगार्ड शोबा, अलाइड ब्रांचेस, पुलिस ऑफिस अमला टीमों के दरमियान वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, हाई जंप, शॉट पुट, एथलेटिक्स खेलों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस गिरिराजू श्रीनिवास, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर अनिल कुमार, शेखर, P कुमार, RSIs, PTs दीगर भी मौजूद थे। అనేది ఆ స్ట్రెస్లోన పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. జనరల్గా పోలీస్ సిబ్బంది అంటే వేరే గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి పబ్లిక్ హాలిడేస్, ఫెస్టివల్స్ అయితే హాలిడేస్ ఉంటాయి. బట్ పోలీసులకి పబ్లిక్ హాలిడేస్, ఫెస్టివల్స్ వస్తే ఇంకా ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది. సో అలాంటి జీవితంలో కూడా ఇలాంటి స్పోర్ట్స్ మీట్ అనేది కొంత మనకి మానసిక ఉల్లాసాన్ని ఇస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ ప్రెజర్స్, ఈ స్ట్రెస్ మనకి బేర్ చేయాలి అంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్తో పాటు మెంటల్ ఫిట్నెస్ కూడా చాలా వరకు అవసరం. అది ముఖ్యంగా ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్లో అయితే అది మరింత అవసరం. అంటే మనకి ఆ వచ్చే ఛాలెంజెస్లో కూడా మైండ్ అనేది చాలా షార్ప్గా పనిచేయాల్సి ఉంటుంది, డెసిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ వచ్చింది, అంతకుముందు లేకుండా. స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అని వచ్చి ఇప్పుడు కొత్తగా ఐటీ పిల్లలకు వీళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఒక వీకెండ్లో వారిని ప్రతిరోజు
వీకెండ్లో తీసుకెళ్ళి వారిని ఒక డీజే లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి వారిని యోగా లాగా డ్యాన్సింగ్ లాగా వారి యొక్క స్ట్రెస్ బస్టర్ని తీస్తున్నారు. బట్ వేరే మన పోలీసులో మనం డైలీ నిత్యం ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నామంటే దానికంతా గర్వించదగ్గింది ఏంటంటే మీరు అందరూ కూడా ఒక దృఢమైన సంకల్పంతో వచ్చి ఈ యొక్క విధి నిర్వహణ చేస్తున్నారు. ఎలాంటి సమస్యలైనా ఎలాంటి స్ట్రెస్ అనేది లేకుండా నేను చూశాను. నేను వచ్చిన 1 ఇయర్లో నా సిబ్బంది ఎప్పుడు కూడా ఏది అప్పగించినా కూడా నో అనకుండా విధి నిర్వహణ భాగంగా ఎన్నో బందోబస్తులు నిర్వహించి సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చారు. సో అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక అభినందనలు. అలాగే मरकजी रियासती हुकूमतें झूठे वादों के जरिए अवाम को बहकाने की कोशिश कर रही। डबल बेडरूम, 24 घंटे करंट, 3 एकड़ जमीन देने के वादों में भी रियासती हुकूमत नाकाम। रियासती साबिका वजीर कांग्रेस कायद पी सुदर्शन रेड्डी का बयान। नवीपेट मंडल के कोसली मिट्टापुर गांव के इलाकों में कांग्रेस पार्टी रियासती कायद साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि मरकजी रियासती हुकूमतें नौजवानों को मुलाजमतें देने का झूठा वादा करते हुए परेशान कर रही। इसी तरह किसानों को फर्टिलाइजर के दामों को बढ़ाते हुए आम आदमी की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही। मरकजी बीजेपी पार्टी इख्तिदार में आने के बाद से मुसलसल पकवान गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए गरीब आवाम को परेशान कर रही। रियासती हुकूमत इख्तिदार में आने के लिए किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो चुकी। डबल बेडरूम घर, 3 एकड़ जमीन दिए जाने, 24 घंटे ज़राअत के लिए बरही की सप्लाई जैसे वादों में भी नाकाम हो चुकी। किसानों की फसलों को लिफ्ट इरिगेशन के जरिए सही पानी सिर्फ कांग्रेस हुकूमत में ही अमल में लाया गया। मरकजी हुकूमत हर छोटी खाने पीने की चीजों पर जीएसटी के नाम पर गरीब आवाम को हिरासा कर रही। आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को जिताने की इन्होंने आवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर सुधाकर राव, साबिका ZTC श्रीनिवास गौड़, साबिका MPP राजेंद्र गौड़, मूसा वी रवि, जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, गड़गू गंगाधर दीगर भी मौजूद थे। ఏదైతే లోన్ మాఫ్ చేస్తామని చెప్పారో ఆ లోన్ మాఫ్ చేయకుండా ఫర్టిలైజర్ ధర కానీ బహుశా 50% ఫర్టిలైజర్స్ పెంచి రైతులు కేవలము వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉంటే డూప్లికేట్ విత్తనాలు వచ్చినా ఆ కంపెనీ మీద యాక్షన్స్ లేవు, ఆ రైతులకు ఇన్సూరెన్స్ లేదు. ఇవన్నీ వదిలేసి మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు అయితే ఇంటింటి ఉద్యోగము, ఎస్సీలకు 3, SC ST 3 ఎకరాలు భూమి అని చెప్పాడు, ఉద్యోగాలు అని చెప్పారు. అదేవిధంగా చదువుకున్న విద్యార్థులు ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చే వరకు, వాళ్ళకు జాబ్ వచ్చే వరకు నెలకు 3,000 ఇస్తామని చెప్పారు. ఇటువంటి వాగ్దానాలన్నీ పక్కన పెట్టి డబ్బులు బెడ్రూమ్ చెప్పారు. ఇవన్నీ చేస్తుండేది చేయకుండా మళ్ళీ ఎస్సీలకు ఒక ఎలక్షన్ రాగానే ఒకటి ఆయన జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఇక్కడ ఏ పాపులేషన్ ఓటర్స్ ఎక్కువ ఉంటారో ఆ కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఓంగిన ఒకటి జ్ఞాపకం రాగానే मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए गरीब दुश्मन बजट पर CPI पार्टी की पुरजोर मजम्मत। कॉर्पोरेट कंपनियों के हक में बजट पेश किया जाना गरीबों गरीबी पर जुल्म। CPI पार्टी की क़ियादत में LIC ऑफिस के सामने धरना। मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट कॉर्पोरेट कंपनियों के हक में, जिसका गरीब मजदूर किसान से कतई कोई मेल नहीं खाता, जिसका CPI पार्टी पुरजोर मजम्मत करती है। CPI पार्टी की जानिब से पूरे देश में मुनक़िद किए गए एहतजाज के दौरान जिले के एल्लामा गुट्टे के LIC ऑफिस के सामने CPI पार्टी की क़ियादत में बड़े पैमाने पर धरना दिया गया। इस मौके पर CPI जिला कायद सुधाकर ने बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट से आम आदमी की जिंदगी मुतासिर हो रही। इस बजट से गरीब मजदूर किसानों को कोई फायदा हासिल नहीं होगा। कॉर्पोरेट कंपनियों के हक में मरकजी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने
बजट को तैयार किया। मोदी सरकार प्राइवेट कंपनियों को ही सरकारी जायदादें फरोख्त कर रही। इनमें से एक LIC जो प्राइवेट सनतकार अदानी के हवाले किया जाना एक मिसाल है, जो देश की तरक्की की रुकावट की सबसे बड़ी साजिश है। बीजेपी मोदी सरकार इख्तिदार में आने से पहले LIC गरीबी के हक में बात करने वाले मोदी ने आज LIC गरीबी को कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले कर दिया, जो निहायती अफसोस की बात है। इस साजिश को बेनकाब करने के लिए छानबीन का अमल में लाया जाना जरूरी है। దేశ ప్రజలు గమనించిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఇది సరిపోదన్నట్టు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ కూడా కొద్దిమంది వ్యక్తులకు అప్పనంగా కేంద్రంలోటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు అప్పచెప్తా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు దేశంలో అదానీ కంపెనీలు విచ్చలవిడిగా పెరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఈనాడు ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నటువంటి బ్యాంకుల్లో ఉన్నటువంటి వాటాదానం కావచ్చు, LICలో ఉన్నటువంటి వాటాదానం కావచ్చు, కొన్ని ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో ఉన్నటువంటి వాటాదానాన్ని ఈరోజు అదానికి ఉన్న పరంగా అప్పచెప్పడం వల్ల ఈరోజు ఆ షేర్లన్నీ కూడా ఇలా నష్టాల్లో చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఇలా LIC ఒక రంగంలోనే ఈ దేశంలో 40,000 కోట్లు నష్టాన్ని ఇలా ఆదాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాడు. దీంతోపాటు SBI కావచ్చు, ఇతర బ్యాంకులు ఉన్నటువంటి ప్రజాధనం అంతా కూడా ఇలా ఆదాన్ని నష్టాల్లో చూపిస్తూ ఉన్నాడు. దీనిపైన పార్లమెంటరీ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో ఒక కమిటీ వేసి దీనిపై విచారణ చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ CPI ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా నిరసన తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ ఇప్పటికే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ఏదైతే అమ్మడానికి यहाँ एक वक्फा। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधर रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, असल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी।
125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। गरीबों की हमदर्द बीजेपी पार्टी है। रियासती हुकूमत की नाकामियों को अवाम में लाते हुए मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों से अवाम को शनासा किया जा रहा। रियासती बीजेपी कायद धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का बयान। शहर के विनायक नगर के 7वें डिवीजन में शक्ति केंद्रम में बीजेपी कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में रियासती बीजेपी कायद धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा प्रोग्राम के तहत अवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल की जानकारी हासिल की जा रही। कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद करते हुए रियासती हुकूमत की नाकामियों को अवाम में लाने की कोशिश की जा रही और रियासती हुकूमत की जुल्म जबरदस्तियों को अवाम में लाते हुए मरकजी हुकूमत के बारे में अवाम को शनासा किया जा रहा। तेलंगाना रियासत को मखरूज रियासत में तब्दील किया जा रहा। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर एस मधु, बीजेपी जिला नायब सदर एन लक्ष्मी नारायण, जिला सेक्रेटरी पी लक्ष्मी नारायण, असेंबली कन्वीनर पी लिंगम, शक्ति केंद्र इंचार्ज, बोध कमेटी कारकुन दीगर भी मौजूद थे। వందల మంది ఉంది తెలంగాణ దేంట్లో ఇవాళ ఎక్సైజ్ లో వైన్స్ లో 2014లో 10,000 కోట్ల ఆమదాన్ ఉన్నది, ఇలా 45,000 కోట్లకు వస్తూ ఉంది. ఒక సర్వేలో తేలింది, ఏం తేలింది? మీరు ప్రజలని ఓట్ బ్యాంక్గా పెన్షను, రైతు బంధు, కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ కలిపితే 30,000 కోట్ల లోపే. కానీ వైన్స్ ద్వారా ప్రభుత్వానికి 40,000 కోట్ల ఆమదాన్ వస్తూ ఉంది. అంటే ప్రజలే ఉల్టా ఇస్తున్నారు. ఆయన ఈ స్కీమ్ ఏదైతే ఆయన ఇస్తూ ఉన్నాడో ఖచ్చితంగా ప్రజలే ఇస్తున్నాడు. భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక దేశం కోసం, ధర్మం కోసం, ప్రజల కోసం, భారతీయ జనతా పార్టీ అంటేనే ఒక సిద్ధాంతపరమైన పార్టీ. మహామహులు ఆ రోజు 100 సంవత్సరాల క్రితము స్వామి వివేకానంద దీన్ని స్థాపించిన జనసంఘ్, శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ, దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ్ మరియు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి వారి ఆశయం ఏంటిదంటే ఏదైతే ప్రభుత్వ పథకాలు ఉంటాయో ఏ స్కీమ్ అయినా చిట్ట చివరి వ్యక్తి इंटर प्रैक्टिकल इम्तिहानात के मौके पर अलर्ट रहने चीफ सुपरिटेंडेंट्स को जिला इंटर तालीमी ओहदेदार रघुराज का इंतबाह। इम्तिहान के आधा घंटा कबल सवालिया पेपर ऑनलाइन के जरिए डाउनलोड किए जा सकते हैं। शहर के सरकारी जूनियर कॉलेज 2022-23 तालीमी साल के लिए जिले में जूनियर कॉलेज प्रैक्टिकल इम्तिहानात सेंटर चीफ सुपरिटेंडेंट्स के हमरा जिला इंटर तालीमी ओहदेदार रघुराज ने मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर इन्होंने इम्तिहानी सेंटर सुपरिटेंडेंट से अलर्ट रहते हुए बेहतर तरीके से इम्तिहानात मुनक्किद करने का मशवरा दिया। इस महीने की 15 तारीख से मार्च 2 तारीख तक मुनक्किद किए जाने वाले प्रैक्टिकल इम्तिहानात में कोई मसाइल दरपेश होने पर इन्हें हल करने के लिए हर एक को तैयार रहने की बात बताई। इम्तिहानात लेने के लिए जिम्मेदारान का तकर्रुर किया गया है। एक दिन पहले इम्तिहानात के जिम्मेदारान को रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया है। चीफ सुपरिटेंडेंट्स भी अपने कॉलेजों में ड्यूटी करने वाले असातिज़ा को एक सेशन पहले रिलीफ करने का हुक्म दिया। इम्तिहानी पर्चे ऑनलाइन में ही डाउनलोड किए जा सकते हैं। एग्जामिनर को आधा घंटा कबल पासवर्ड की आगाही लाई जाएगी। एग्जामिनर को आधा घंटा कबल पासवर्ड की आगाही दी जाएगी। इस पासवर्ड के जरिए इम्तिहानी पर्चों को ऑनलाइन के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है। बरक़ी की रुकावट या बरक़ी मसाइल ना पैदा होने के लिए बरक़ी ओहदेदारों से बात करें। चीफ सुपरिटेंडेंट्स बरक़ी कटौती या बरक़ी मसाइल में ज़्यादा परेशानी होने पर इसका मुतबादिल ढूंढते हुए इस कमी को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। इम्तिहानात में कोई कमी ना होने के लिए हर कोई अलर्ट रहने की ताकीद की गई। सुबह या दोपहर में ड्यूटी अंजाम देने वाले बगैर इत्तला के
के गैर हाजिर रहने पर, हमें मुतल्ला करने पर दूसरे एग्जामिनर को इस जगह किसी को मुतबादिल रखा जाएगा। प्रैक्टिकल इम्तिहानात के मुकम्मल हो जाने पर एग्जामिनर्स मार्क्स लिस्ट को ऑनलाइन के जरिए दाखिल करें। इसी तरह जवाबी पेपर सीडी में रिकॉर्ड करते हुए असातिज़ा तक पहुंचाएं। इम्तिहान सेंटरों में तलबा की हाजिरी की इत्तला इम्तिहानात मरकज के चीफ सुपरिटेंडेंट्स अपने अपने कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को पहले मुतल्ला करें। इन 3 मरहलों में होने वाले प्रैक्टिकल इम्तिहानात में तलबा हाजिर रहने के लिए दिलचस्पी दिखाए। रियासत तेलंगाना में बहुत जल्द या अगले चंद माह में इंतखाबी बिगल बच सकता है, तो इसकी तैयारी के तौर पर कुछ बरसाती मेंढक बिन पेंदे के लोटे अब खूब अवामी मसाइल को लेकर संजीदा होने की अदाकारी करते नजर आएंगे। कोई अपनी जमात को छोड़ दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार कर अवाम का सच्चा हमदर्द बनना चाहता है, तो कोई सियासी जमात का दफ्तर खोल अपनी सियासी दुकान चलाना चाहता है। गुज़िश्ता 5 सालों से ऐसे बरसाती मेंढक और बिन पेंदे के लोटे कहाँ थे? जब मिल्लत को जरूरत थी उस वक्त ये अपने कारोबार में मगन थे और अब सियासी दुकान से फिर से अपनी जेबें गर्म करने के चक्कर में है। अवाम इनसे होशियार बाज रहे। परवाज टीवी ऐसे मतलब परस्त सो कॉल्ड सियासी कायदीन की सिलसिलावार खबरें नश्र करता रहेगा ताकि मिल्लत को आगाह कर सके। तेलंगाना में असेंबली बजट इजलास के बाद अब इंतखाबी सरगर्मियां तेज होने और अगले चंद माह या फिर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की क़यास आराइयां और इम्कानात का माहिरीन इज़हार कर रहे। ऐसे में कुछ ऐसे सो कॉल्ड सियासी कायदीन जिनको हकीकत में गुज़रे 5 सालों में मिल्लत की तकलीफ, परेशानी और मसाइल वो हक से किसी दर्जा कोई सरोकार ना था, अब ऐसे बरसाती मेंढक और बिन पेंदे के लोटे अपनी सियासी दुकान चमकाने और अपनी जेबें गर्म करने के चक्कर में कुछ एक तो अपनी सियासी जमात को छोड़ दूसरी जमात में शामिल होकर अवाम का सच्चा हमदर्द बनने का दिखावा तक कर रहे, तो चंद एक अपनी सियासी जमात के दफातर खोल अवाम के मसाइल पर संजीदा होने की अदाकारी कर रहे। दरहकीकत ये लोग जो खुद को लीडर समझने की गलतफहमी का शिकार है, गुज़िश्ता 5 सालों से लापता थे और अपने अपने कारोबार वो मसरूफियात में मगन रहकर खूब पैसे कमाए और अपनी जेबें गर्म करते रहे। और अब जब इंतखाबी मौसम के आगाज के इम्कान नमूदार हुए, तब ये लोग अपने मफाद के लिए अवाम के दरमियान रहने और अवामी मसाइल पर संजीदा होने की अदाकारी बखूबी निभा है। अवाम बिलखुसूस मुसलमान ऐसे लीडरान जो आपके आसपास है उन्हें पहचाने और उन्हें आपके जज्बात और आपके कीमती वोटों से खेलने, वो अपनी जेबें गर्म करने का मौका हरगिज ना दे। अवाम सिर्फ उन कायदीन का भरोसा करे, उनकी बात माने जो आपके सुख दुख, मसाइल और आपके हक के लिए सिर्फ इंतखाबात के वक्त नहीं बल्कि हमेशा साथ रहते हो। ये बरसाती मेंढक अब नाटक कर सियासी पार्टियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान उनके साथ है और सौदेबाजी करते हैं, उन्हें मौका हरगिज ना दे। ऐसे सो कॉल्ड लीडरान पर सिलसिलेवार खबरें परवाज टीवी नश्र करता रहेगा ताकि मिल्लत आगाह रहे और धोखे में ना आए। दरपली मंडल के गांव-गांव बीजेपी कायदीन की बीजेपी यात्रा मुनाकिद की गई। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों को 24 घंटे मुफ्त बर्क़ी सरबराही सिर्फ बातों तक ही महदूद। बीजेपी रूरल इंचार्ज दिनेश कलाचारी का बयान। दरपली मंडल के रामड़गु प्रोजेक्ट केशाराम, चल्लागरगा, दुबाक, रिक्कलपल्ली गाँव बीजेपी पार्टी शक्ति केंद्र में कॉर्नर मीटिंगों का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बीजेपी रूरल इंचार्ज दिनेश कलाचारी ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासती हुकूमत गरीबों से जुबानी वादे कर रही, आज तक गरीब बेघर अवाम में डबल बेडरूम की तकसीम अमल में नहीं लाएगी, जो बड़े ही शर्म की बात है। अवाम को जुबानी वादों से बहलाने की कोशिश की जा रही। असेंबली में रियासत के लिए करोड़ों का बजट पेश किया गया, जिसमें गल्फ मुतासरीन के लिए 1 पैसा भी मख्तस नहीं किया गया। कितने अफसोस की बात है। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला साबिका सदर पी गंगा रेड्डी, बीजेपी मंडल सदर एल गंगा रेड्डी, प्रवीण कुमार दीगर भी मौजूद थे। చల్లగరిగే దుబ్బాక రేకులపల్లి గోవిందపేట దమనపేటగా సంబంధించిన శక్తి కేంద్రాలలో గవర్నర్ జిల్లా పార్టీ మాజీ అధ్యక్షులు పెద్దల గంగారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం। 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నాను గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాం, ఒక్కోసారి దుబ్బాకలు కానీ ఏడ కరెంట్ ఇస్తుందో తెలుస్తుంది।
మూడో మాట చెప్తున్నాం, ఏదైతే నువ్వు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అని చెప్పావు, అల్లుడు వస్తే కాళ్ళు దాపుకోవాలని చెప్పినావు, దుబ్బాకలో కానీ దరిపల్లి కానీ ఎన్ని ఇల్లు కట్టినావు అని అడుగుతున్నాం. ఇవాళ ఒక్క ఇల్లని ఇచ్చినావా? నా గల్ఫ్ అన్నలు, నా దుబాయ్లో ఉన్న వాళ్ళు, నా సౌదీలో ఉన్న అన్నలు ఈడ వాళ్ళ భార్యా పిల్లల్ని వదిలేసి దేశంగా ఆస్తి దోషిమని కాదు, నిన్న ఇన్ని లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ పెట్టినావు, అందులో గల్ఫ్ బాధితులకు డబ్బులు పెట్టాలని తెలియదానికి అని అడుగుతున్నాను నేను. నీ బిడ్డే బుర్జ్ ఖలీఫాలో 200 కోట్లు పెట్టి ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు, కానీ నా గల్ఫ్ అన్న చచ్చిపోతే, నా పేదోడు ఆడ చచ్చిపోతే డెడ్ బాడీ వచ్చడానికి 3 నెలలు 2 నెలలు 30 రోజులు టైం పడుతుందా? ఇవన్నిటి కూడా కేసీఆర్ సమాధానాలు చెప్పాలి. రేపు జరగబోయే ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ని పొందబెట్టి इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। नौजवानों में खेलों का जोश और काबिलियत को उभारने के मकसद से ही सीएम केसीआर के जन्मदिन के मौके पर रियासती सतह वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा। एमएलसी के कविता मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम व किसानों को दे रही धोखा, मुफ्त बरकी, डबल बेडरूम्स व दीगर सहूलतें फराहम करने में हुकूमतें नाकाम। साबिका रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी। इंतखाबी मौसम के जल्द आगाज के इम्कानात व पेश कयासियां, बरसाती मेंढक व बिन पेंदे के लोटे, अवामी मसाइल को लेकर हो रहे सरगर्म, अवाम होशियार पाश। आज़मीन हज 2023 के लिए खुशखबरी, हज फॉर्म्स के अदखाल का आगाज 10 मार्च, फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख। आज़मीन हज दफ्तर वाक़ई तबारक स्कूल से रुजू करे। सदर सोसाइटी मौलाना इस्माइल आरफी साहिब। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।